So good afternoon, everyone, and thank you, Smriti ma'am and Vinitsa for giving me this opportunity. So sessions करना आप लोगों के साथ is always exciting because सिर्फ इस session में I think आप लोग नहीं सीखते. It is a learning opportunity for me as well. So thank you for giving me that opportunity. So with today's session, I'll just So today's session is about tracking the idea. Now, हम सबके पास हम डेली बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, एंड वी हियर कि हम बहुत सारे आइडियाज सुनते हैं. बट व्हाट इज दैट वन आइडिया दैट विल एक्चुअली टर्न इनटू अ सक्सेसफुल स्टार्टअप? सो इससे पहले कि हम ये सीखें कि आइडिया कैसे जनरेट करते हैं या अपने आइडिया को कैसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, लेट्स सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज a startup. Anybody is writing on the annotation, please stop doing that. Koi I think pen se screen pe scribble kar rahe hain, so I would request please do not do that. Okay, so I have 3 pictures in front of you and I would want ki aap hame chat box mein ye bataएं that do you know any one of them? Very quickly, आप yes, ma'am. किसी को भी इसमें से जानते हो? Am I audible to everyone? Okay, I'm sure Ritesh Agarwal को सब जानते होंगे. Yes, the first one is Dhirubhai Ambani. How about the third picture? Does anyone knows who is the third man in the picture? Okay, so without wasting any further time, his name is Mr. Kaushik Roy. I'm sure काफी लोगों ने बिरयानी पाई किलो का नाम सुना होगा. It's also a startup, a restaurant chain, wherein जहां पर इन्होंने खुद as a waiter start किया था, and now his company is around 350 crore worth. So ये जो तीनों हैं जिनकी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, all 3 of them स्टार्टअप ये नहीं है कि आप सिर्फ हम अपने डोमेन में एक स्पेसिफिक डोमेन में अपने कंफर्ट जोन से अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो, बट इन तीनों ने अपने स्टार्टअप डोमेन से बाहर निकल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के Sorry to come in, Shilpa, I had to just reclaim the host. Just allow me 5 minutes. Okay. I'm going to change the settings over here. So just 1 minute. Sure. So meanwhile, Smriti ma'am is please continue. Yes, sure. Okay, thank you so much. Okay. So let's understand who is an entrepreneur and what is a startup. आप मेरी स्क्रीन पे अभी एक डेफिनेशन देख रहे होंगे, who is an entrepreneur, who is a startup. But I want to understand, since आप इतने टाइम से हम सबसे interact कर रहे हो, I would want to understand what is your understanding of a startup or who is an entrepreneur. Very quickly, please. Again, I would say, I say this to all my students that do not think that आप गलत आंसर दोगे. Anybody is going to judge you. Nothing is going to happen as such. Anything that you feel, what is a startup, who's an entrepreneur? If you could just quickly give me an answer. Okay. So basically, a startup, who is an entrepreneur? Let's understand that first.
एंटरप्रेन्योर समवन जो कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या लेट्स से एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक स्टार्टअप के तौर पे खड़े करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम एक स्टार्टअप बोलते हैं. सो लेट्स से जैसे रितेश अग्रवाल जो हमने पिछली उसमें देखा, ही जो उन्होंने अपने ओयो जब स्टार्ट किया, ओयो क्या था बेसिकली टू क्रिएट, ही इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि होटल्स को अपने अंडर लेके एंड देन दे सेल आउट द रूम्स फर्दर. So simultaneously, let's talk about, if we talk about Ritesh Agarwal, he's an entrepreneur जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी अपने प्रॉब्लम को फेस करने के बाद कि ऐसा कुछ रिक्वायर्ड है मार्केट में. So then that's how he created Oyo, and which is a startup. So 10 years ago, we had not imagined. If anybody can tell me what are these two icons on my screen right now? Anybody can quickly guess what are these two icons? Okay, the first one is hotels, but yes, it is related to hotels. Taxi, yes, Divya, your answer is right. So the first option is the Airbnb. Airbnb के बारे में सबने सुना होगा. And the second is Uber. अब लेट्स गो बैक टू 10 years बैक. अब उस टाइम पर वी हैड नॉट हर्ड कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, या प्रॉब्ली जब होते भी थे तो बहुत लिमिटेड नंबर्स होते थे स्टार्टअप्स के. पहले उबर नहीं होता था, ओयो नहीं होता था, जोमैटो नहीं होता था. बट विद टाइम देयर हैज बीन अ चेंज. विद टाइम द मार्केट इज डिस्ट्रप्टिंग एंड देयर आर लॉट मोर स्टार्टअप्स, व्हिच इज व्हाई आज की डेट में यू हैव एन इंक्यूबेशन सेंटर इन योर रिस्पेक्टिव सेंटर्स. A lot of you come and interact with us कि मैम मेरा ये idea है, sir I want to do this, and that is how we guide you. So we are actually building the future entrepreneurs. Now a lot of people will say कि entrepreneurs क्या होते हैं? They are normal people like you and me. अब नहीं तो let's say few people also assume कि अच्छा नहीं, they might have some VIP entitlement या उनके पास बहुत पैसे होते होंगे, anything such. नहीं, we entrepreneurs do not have anything apart from patience, the vision, and the dedication. Of course, the idea is always required, but then without patience, vision, and dedication, please do not think that अच्छा उनके पास एक कोई बहुत सारे पैसे होंगे या उनके पास already सब कुछ well established या set up होगा. नहीं, that does not happen in the case of entrepreneurs. It all starts with an idea and determination. Now, a lot of my students, and I'm sure it happens with others as well, that a lot of students who come into us that, ma'am, we have an idea, we want to do this. And some point of the time, after some point, they're distracted. You're not focusing what you're saying. आप हमसे बात नहीं करते. You keep distracting yourself. So that is not something ये तक नहीं लेके जाएगा. आपको अपनी आइडिया पे खुद बिलीव करना पड़ेगा. इस बात वो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आपको उस प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, so that आप भी आगे चल के अपने आप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर कह सके. Now the journey. How does this entire journey works? First, the foremost thing is what you need to have is idea. आइडिया हमारे पास है, ठीक है, लेट्स सी. नेक्स्ट इज द राइट प्रोडक्ट. इफ राइट प्रोडक्ट का होना मार्केट में बहुत जरूरी है. बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि लेट्स से 40% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव द राइट प्रोडक्ट. अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते. एंड विद द राइट प्रोडक्ट आपको उसके प्राइसिंग भी एक अच्छी प्राइसिंग रखनी पड़ेगी, सो दैट आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आप जिस डोमेन को टारगेट करना चाहते हो, दे कैन टेक दैट प्रोडक्ट. एंड लास्ट वुड बी द राइट ग्रोथ सिस्टम. सो एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर ग्रोथ सिस्टम एज वेल. ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्रोटोटाइप बना दिया, आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी और आप सीधा उसको लॉन्च कर देते हो.
So again, in that case, your idea or your startup will not succeed further. Now let's say who should do a startup. We say that, everybody should do a startup. All the audience right now, we have around 140 plus students attending the session, and we say that all of you can do your startups. Now you must be wondering, ma'am, हम कैसे startup कर सकते हैं? That is how we come in place. ये जो 2 weeks का हमने पूरा program रखा है, it is for your benefit. We want to make you future entrepreneurs. आपको सारी guidance हम देंगे. What we request and what we say to our students that all we need is your thinking caps on. सोचो कि what is that new thing that you can do? What is something that is required in the market today? And you can, out of that, you can create a successful startup. When you become a successful entrepreneur or when you become a startup founder, आप सिर्फ अपनी company नहीं चलाते, but you also create jobs. You don't let your talent go waste. अपना talent नहीं बर्बाद करते, and you also feel satisfied and content. A lot of our students, who जो भी हमारे साथ हमारे startups कर रहे हैं, they feel very sad when we talk to them. वो कहते हैं मैम हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी को जॉब दे पा रहे हैं, हम अपने कॉलेज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, we are doing something for the country. So it's a whole soul process wherein we say that again everybody can do a startup. Now who should not do a startup? Let's say there are a lot of people that in let's say talk about India only. India में बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब भी करते हैं, जो कि 9 to 5 भी जॉब करते हैं, जो स्टार्टअप भी करते हैं और 9 to 5 भी जॉब करते हैं. अब जिनका 9 to 5 का अगर लेट्स से कि आपका ये माइंडसेट है कि नहीं हमें 9 to 5 जॉब करनी है, वी नीड अ फिक्स्ड पेचेक, हर पहली तारीख को हमारे पास हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाने चाहिए, एंड आपको ये लग रहा हो कि नहीं अच्छा हम लेट्स से हम अपने अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो विल फेल. सो वो जो डर होता है ना फेलियर का, अगर ये 3 चीजें आपके माइंडसेट में हैं, then I'm sorry my friend, you will not be able to do a startup. It's a harsh truth, but then yes, अगर ये 3 चीजें आप अपने दिमाग में लेके चलोगे तो आप एक स्टार्टअप आपको नहीं करना चाहिए. So it's basically ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है. अब हम ये अगर जैसे मैंने आपको ये कहा कि आप सब स्टार्टअप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आज आप हमारे पास आए मैम हमारा ये स्टार्टअप है, हम अभी मेरे को ये करना है, बट ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी. वो जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं है ना आपके पास है जिससे आप इसको ओवरनाइट सक्सेस दे सकते हो. टाइम धीरे धीरे यू विल बी एबल टू रीच दैट सक्सेस पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट. कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है. When we speak with these students that मैम हमारे बहुत पैसे लगेंगे, हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, what we say is कि जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो आपके दिमाग में बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं. आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको अपना ऑफिस खड़ा करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, आपको किसी से गाइडेंस चाहिए, आपको उसके लिए भी उसको पे करना पड़ता है. बट व्हाट इफ देयर इज एन लेट्स से अ सिनेरियो wherein आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करनी है, आपको ऑफिस स्पेस आपको फ्री मिलेगा, आपको मेंटरिंग गाइडेंस वो भी फ्री मिलेगी, द नेटवर्किंग, इंटरनेट एक्सेस, सपोर्ट टू गेट फंडिंग, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं. देयर इज वन प्लेस इन योर colleges as well, respective colleges, so we are the one who supports you with that. So when you get your idea registered or let's say when you approach us with an idea, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, आपको इन चीजों पे स्पेंड नहीं करना. सो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा था, डिटर्मिनेशन, फोकस इज द की टू रीच द सक्सेस पॉइंट. सेम यहाँ दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. नाउ आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर. If anybody could give me a heads up. Right. So now moving on. Shilpa, few students have raised their hands. I don't know if they have questions. I will just have a look.
Just a second, I'll have a look. Okay. Abhishek, Mohammed, Irfan, okay. Kunal, Preetam, आप लोगों के कोई questions हैं तो you can write it in the chat box. Otherwise, last में session जैसे ही खत्म होगा, I'll be happy to take the questions as well. Now moving on to the main topic for today. Before having an idea, we also need to understand that why, जब मैंने कहा था कि 40% अगर let's say that's a assumed percentage that I had shared with you. So let's say कि जब मैंने बोला 40% startups जो हैं जो हमारे fail करते हैं, why do they fail? Shilpa ma'am? Yes, Priti ma'am. I'm really sorry. Before you come to the second slide, we need to do something really important. Okay. I am not able to mute this, remove this. So if you could just check your chat box, you've given the right instructions on how you can do that. It would have come to you from Avnish sir. If you go on the okay, mode, sure, I will do that. Thank you so much, ma'am. Okay. I'm sorry for this halt in between. Sorry. Okay. Now I think we are good to go, Smriti ma'am. Okay. So moving further, as I was saying that हम startup तुम सबको कहते हैं कि आप कर लो, but we also need to understand that why startups fail. A major segment that if you will look at the screen, आप ये chart देखो, so first number is building something that nobody wants. This is one of the major reason, या जो मैंने पिछली slides में भी कहा था, that the right product and the right pricing. This is something that is very important. If you don't, अगर आपका product सही नहीं है, trust me, your startup will not last for long. Maybe हो सकता है वो 6 महीने चल जाए, या हो सकता है वो 6 महीने भी ना चले because of the wrong product. So it is very important that you have the right product in the market, and for that you need to have your idea validated. Now what is idea validation? Let's say हमारे पास कोई idea आया and we tell the students that first we'll do your idea validation. So idea validation is an idea, उसका आप feedback लेते हो. You go to the market, you do a market research, अपनी target audience को आपने approach किया, you take their feedback, and once you have the right feedback in place, then the prototype also, and then later that gets converted into a startup idea. Now the first feedback that I would want to, it's not a feedback, but I would request everyone, this we have learned, हमने जो भी 2 हफ्ते पहले acceleration week का जो पूरा program किया था, we had learned from our speakers that जब भी आप कोई idea validation करना चाहते हो, जब भी आप अपना कोई product का feedback लेना चाहते हो, take it from people whom you don't know. अब जैसे I have a team, मेरे पास तो 3 लोगों की एक टीम है जो कि they are trying to build a product like TikTok. So when I asked them कि who are the people who are testing your product, they said that ma'am हमारे अपने friends हैं जो कि कर रहे हैं इसको. So first thing that I told them that no, approach strangers, approach people जिनको आप नहीं जानते, so that आपको वो एक honest feedback देंगे.
अगर आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग या अपने प्रोडक्ट का फीडबैक अपने फैमिलीज या फ्रेंड्स से लेते हो, क्योंकि वो आपको जानते हैं, तो इसलिए आपको एक वो अच्छा फीडबैक या लेट्स से ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देंगे। वो हो सकता है आपको जानते तो वो ये कह देंगे नहीं नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यू कैन डू योर मार्केट लॉन्च, बट हो सकता है सच्चाई उसकी ये हो कि वो प्रोडक्ट अभी इस टाइम पे फिट नहीं करता हो। सो दैट इज व्हाई ऑनेस्ट फीडबैक इज वेरी रिक्वायर्ड। नाउ व्हाई वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड। अब हमने कहा कि ठीक है आपने फीडबैक वगैरह सब कुछ ले लिया, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि वैलिडेशन करना उतना ही जरूरी है सो दैट यू कैन एक्चुअली सक्सेसफुली लॉन्च योर स्टार्टअप। बिकॉज जो कि रिस्क होते हैं मार्केट से रिलेटेड, बहुत सारे रिस्क होते हैं। आप जब अपना आइडिया वैलिडेशन करते हो, आप मार्केट रिसर्च करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि लेट्स से अगर आपका कोई सिमिलर प्रोडक्ट है तो आप में उसका एटलीस्ट प्राइसिंग क्या है आपके कॉम्पिटिटर की, आप उसको ध्यान में रख सकते हो, सो दैट एटलीस्ट आप प्राइस कंपटीशन आपके बीच में ना हो, या लेट्स से मार्केटिंग कंपटीशन ना हो आपकी। इससे जब आप अपना मार्केट वैलिडेशन करते हो आपकी कॉस्ट भी मिनिमाइज होती है। एंड ऑल्सो जो प्रोसेस होता है कि आप जितनी जल्दी अपना मार्केट वैलिडेशन या अपना वैलिडेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करोगे, उतनी ही जल्दी आप इसको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। Now let's say the examples. Now अब आप मेरी स्क्रीन पे 4 अलग अलग लोगोस देख रहे हो, जिसमें से रीड एंड टेलर एंड एटलस साइकिल, आई वुड नॉट कॉल देम अ स्टार्टअप, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड देम फॉर द एग्जाम्पल। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज की डेट में बंद हो गए हैं। गूगल क्लास, आई एम श्योर सबने इसके बारे में सुना होगा। बहुत ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि मार्केट में नहीं चला। रीजन, ओवर एक्सपेंसिव। $1,500 का ये एक चश्मा जो कि गूगल वाज ट्राइंग टू लॉन्च नहीं चला मार्केट में। क्यों नहीं चला? मल्टीपल रीजन। प्राइसिंग गलत थी, लोगों को अपनी सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये नहीं चला। साइमल्टेनियसली जबोंग, आज से लेट्स से 5-7 ईयर्स पहले जबोंग मैं खुद पर्सनली भी यूज करती थी, बट आज की डेट में जबोंग नहीं चलता मार्केट में। व्हाई? बिकॉज some other company occupied it, उन्होंने जबोंग बंद कर दिया बिकॉज वो दूसरी कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे। साइमल्टेनियसली एटलस साइकिल्स, बहुत टाइम से ये ब्रांड चलता आ रहा था, अचानक इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे कंपनी चलाने के लिए। एंड द सेम हैपेंड फॉर रीड एंड टेलर। सो मैं ये नहीं कहती कि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि आपका बिल्डिंग समथिंग दैट नोबडी वांट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दैट इज द ओनली रीजन। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड सो दैट हम ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करें। नाउ लेट्स सी दैट what are the factors that will contribute to the success of your idea. The first is how appealing is your idea. अब let's say अब you want to target college students. आप एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक आप कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हो, आपने उनके लिए कोई ऐप बनाई या एनीथिंग दैट फॉर देयर इजी, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है आपके आइडिया को लेके। द सेकेंड पॉइंट वुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल मीन्स हाउ इजी इट इज टू कंपैटिबल मीन्स कि जो आप आइडिया अपना लेके आ रहे हो मार्केट में और जिस टारगेट ऑडियंस को आप इसको अप्रोच कर रहे हो, क्या डू दे थिंक दैट इट इज वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया रहेगा, वो एक परसिस्टेंट आइडिया रहेगा। द थर्ड वन इज हाउ इज योर आइडिया बेटर देन योर कंपेटिटर्स। इफ लेट्स से हर जो भी स्टार्टअप आप करते हो, जिस भी डोमेन में करते हो, एवरी डोमेन हैज देयर कंपेटिटर्स। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ इज योर आइडिया बेटर देन द अदर्स। The next point would be, is it easy to understand? आप अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप बना देते हो या लेट्स से आपने ऐप बनाई वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को समझ में नहीं आ रही, सो डू यू थिंक विल दैट आइडिया वर्क? दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज अगर आप यूजर फ्रेंडली नहीं बनाओगे तो आपका वो आइडिया कभी नहीं काम करेगा। ऑल्सो आप जब एक्सपेरिमेंट बिफोर परचेजिंग एज इन कि लेट्स से आपने कोई प्रोटोटाइप बनाया है जिसको आप पहले ही बेच सकते हो या पहले ही यूजर ट्राई कर सकते हैं खरीदने से पहले। एंड ऑल्सो द लास्ट वुड बी विजिबल बेनिफिट्स टू अदर्स।
इसके क्या फायदे हैं, ये लोगों को एक्चुअली दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं उस आइडिया को लाने से, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये आगे डिसाइड करेंगे कि आपका आइडिया कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। Sorry. So let's see now why you should do an idea validation. You need to see that you have to test that if the idea works or not. मार्केट योर प्रोडक्ट फास्टर, अगर आप इसको करते हो तो इससे आपके प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकते हैं, आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है, आप टाइमिंग्स चेक कर सकते हो कि अच्छा इज दिस द राइट टाइम टू मार्केट अ प्रोडक्ट और नॉट। लेट्स से आप कोई, लेट्स टॉक अबाउट द राइट नाउ द सिचुएशन, इस टाइम पे लॉकडाउन है, एवरीबडी इज सिटिंग एट होम, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जो कि आपको फिजिकली मार्केट में जाके लेना पड़ेगा। Do you think anybody will be stepping out to that in the market to get their product? People will not step out. So abhi, keeping that in mind, you need to have a product which is online. Prove that you can sell the product. You also, so ये idea validation एक ऐसा process है जिसमें आपको हर एक डोमेन को, हर एक पॉइंट को नजरिए में रख के आपको इसको काम करना होता है। Now, how to validate a startup idea? So it's a 8-step, the most elaborated thing that I could do. So let's go point-wise point. First one is identify your target group. आपका टारगेट ग्रुप, आपकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन होना पहले से बहुत जरूरी है, नहीं तो दिस इज द स्टेप वेयर यू विल टेंड टू फेल। मतलब इसके आगे फिर जो भी आप चीजें करोगे वो सारी गलत होंगी और आपका स्टार्टअप भी गलत होगा। सो योर टारगेट ऑडियंस शुड बी प्री डिफाइंड। Reach people from your target group and talk to them. Again, जैसे मैंने पहले बताया, do not reach family, friends or peers. Reach people who are unknown to you so that they can give you honest feedbacks. Third would be analyzing your competitors. Competition का analyzation करना बहुत जरूरी है so that you can actually decide about your product, how to price it, how to market it. Then pitch and discuss your idea. Pitch and discuss your idea would be discussing it with your team, that this is what we have learned and this is how we are going to process further. Sorry. Next would be combine your idea with what you have learned. So पहले जो 4 steps में आपने सीखा है वो आपको इस step पर आके आपको सब कुछ जोड़ के and then you process further. Make a proof of concept. As I said, जो हमने यहाँ तक सीखा उसको आगे करना है। Next would be get users and collect feedback. अब आपने एक अपना proof of concept बना लिया which is similar to prototype, and then now get users to see what is the feedback about them. So this is how the entire startup idea validation works. So now there are various tools in the market to validate your idea. The first one would be validation board. Now validation board is something that आपको इसमें बहुत, आप इसमें एक ऐसा solution है जिसमें you can define customers, problem with solutions and identify the core assumptions that are related to your aspects. The next one would be validation canvas. अब आप ये सोचोगे वैलिडेशन बोर्ड और वैलिडेशन कैनवस सेम है, नहीं, ये दोनों बहुत अलग अलग टूल्स हैं जिससे आप अपना आइडिया वैलिडेशन करते हो। सो वैलिडेशन कैनवस में क्या होता है, इसमें आप अपना वैल्यू प्रोपोजिशन वैलिडेट कर सकते हो, या आपके कस्टमर को ग्रुप कैसे करना है या ग्रुपिंग कैसे करना है, या हाउ मच इज योर कस्टमर विलिंग टू पे, व्हाट आर द रिजल्ट्स, व्हाट इज दैट यू कंक्लूड। सो ये सारी चीजें आप वैलिडेशन कैनवस में कर सकते हो। और उन दोनों से पहले भी द बेसिक वन वुड बी गूगल, द रिसर्च, स्टार्ट विथ योर रिसर्च दैट व्हाट इज द करंट मार्केट ट्रेंड, इज देयर दिस सिमिलर प्रोडक्ट, जो आप जब प्रोडक्ट बिल्ड करना चाह रहे हो वैसा सिमिलर प्रोडक्ट है कि नहीं है। क्रंचबेस एंड angel.co, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें यू कैन टेक आउट द फाइनेंशियल्स अबाउट द कंपनी। लिंक्डइन, आज की डेट में एवरीबडी यूजेस लिंक्डइन, यू कैन एक्चुअली सी कि अच्छा ठीक है हाउ इज इट ग्रोइंग, इन्होंने कैसे, सो विद द प्रीमियम अकाउंट ऑफ द लिंक्डइन यू कैन हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट देम। गूगल एडवर्ड्स, गूगल ट्रेंड्स, Quora,
So these are the few websites or the tools through which you can actually do your validation of your idea, or let's say ये आपकी help करेंगे अपने idea को validate करने में, उसके बारे में research करने में. Now key success factors. हम कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, idea validation कर लिया, but still there are few things that you need to keep in mind, that you have to be ruthlessly critical. The first point that you see, ruthlessly critical means हमें लगता है कि हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, हमें इसमें कोई गलती नहीं है, but you need to think from a customer's point of view कि अच्छा, if I have to buy this product, मैं इसमें क्या क्या मेरे को चीजें चाहिए होंगी या क्या कमियां इसमें मैं निकाल सकता हूँ. Keep the validation process simple. आप जितना इसको simple रखोगे उतना ज्यादा better होगा. आप इसको बहुत over complicate करोगे तो वो that will not give you the effective result. Be systematic. Systematic means कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले आपका आइडिया आया, आपने पहले प्रोटोटाइप बना दिया और उसके बाद आप मार्केट रिसर्च करोगे. नहीं, that will not give you the right results. So you need to follow each step systematically so that you reach the end results in a correct way. Involve the right target audience. जैसा कि मैं इतनी देर से आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, that you need to have the right target audience in place. And look around and learn from others' mistake. So this was, I think, 7th May का session. I'm not sure how many आप में से कितने ने attend किया था, but जो उस दिन हमारे speaker थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, and वो अभी भी मेरे को अभी तक याद है. He said that कि जो अपनी गलतियों से सीखे वो समझदार है, but जो दूसरों की गलतियों से सीखे वो genius है. So this is how the 5th point is. So you have to become that genius. कि let's say if you want to start a startup idea, देखो कि अगर आप जो आइडिया करना चाह रहे हो पहले किसी ने किया है, क्या वो सक्सेसफुल था, और अगर नहीं था तो वो क्यों नहीं था. So think, see that कि आप उसमें क्या चेंज कर सकते हो to make your idea successful. So the whole idea, अभी इतना जो भी मैंने आपको बताया, इसका एक ही मतलब है कि आपको इस आइडिया वैलिडेशन का ये मतलब नहीं है कि आप इसको एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आओ, नहीं, but to see that कि आपके आइडिया में पोटेंशियल है, to see that you can actually turn this into a successful startup idea. So this is how, जब मैंने पहले बताया था आप लोगों की वो कॉस्टिंग वाला पार्ट, कि जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो आपको फ्री स्पेस मिलेगा, आपको फ्री गाइडेंस और मेंटरेंस मिलेगी. So this is how we come in place as in SAC, Startup Accelerator Chamber of Commerce, 5 centers. This is how we help you. We help you grow. We will nurture you. We will, हम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे. And इसके लिए you do not have to pay us anything. So this is it from my today's presentation. Please follow us on our social media channels. So now we are open to question and answers. If anybody has any questions, can please ask me. Shilpa ma'am, we have a question in the chat. Yes, and that's what I'm. So Lab Singh says, how startups have competitors. Aren't startups ideas supposed to be new and unique? Yes, Lab, startups ideas unique और new होते हैं, but ऐसा नहीं है कि एक लिमिट होती है. आप सेम सेगमेंट में भी आपके अलग अलग कंपेटिटर्स हो सकते हैं. Let's talk about Tracto. Tracto भी एक स्टार्टअप है जिसमें आप ऑनलाइन कंसल्टेशन, अपनी मेडिसिन सब कुछ ले सकते हो, बट उसके साइमल्टेनियसली भी और बहुत से अलग अलग स्टार्टअप्स हैं. M-Fine है, सो उनके M-Fine is doing something different from Tracto. Let's say Zomato है और Swiggy भी है. So what is the difference that both of them are doing? So this is how the startup works. So every startup, आप कोई भी कल को आप भी अपना कोई आइडिया लेके आते हो, सो उसमें भी कोई ना कोई कंपटीशन होगा. जैसे आज की डेट में कंट्री मिल्क है, कंट्री मिल्क बहुत से लोग यूज करते हैं, बट थोड़े साल पहले देयर वाज समवन कॉल्ड दूध वाला. सो उसमें भी कंपटीशन था, बट दूध वाला इज नो लॉन्गर इन द रन, नहीं चला, वो बंद हो गया स्टार्टअप. सो कंपटीशन होना हेल्दी भी है. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप कैसे बेटर बनोगे, राइट? So I hope that answers your questions, Lab.
Okay, which startups are most successful today? Okay, which startups? Well, I would say that जिस startup idea में you have the full dedication. ऐसा नहीं है कि सिर्फ idea या funding होना will make a startup successful. You need to have a lot of things in place. You need to have the right team. आपका cost अच्छा होना चाहिए, आपकी marketing अच्छी होनी चाहिए, proper execution सब चीजों का. So this is how will make your startup successful. ये कोई एक डोमेन नहीं है. लेट्स आई विल नॉट से कि ओयो आज सक्सेसफुल है. यस, ओयो सक्सेसफुल है, बट ओयो के भी कुछ बैकलॉग्स हैं. Okay, how to approach or find the right and unique startup idea? This question was by Ashu. Now, Ashu, I would say that startups, आप पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. स्टार्टअप्स वही लोग क्रिएट करते हैं जो कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं. लुक अराउंड यू, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाउ कैन यू बिकम दी प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर देम. सो आपको अपने आसपास ही देखना पड़ेगा. दैट इज हाउ यू विल ऑल्सो पिक अप ए स्टार्टअप आइडिया. Okay, how to find co-founders? Okay, Akash, I would say कि finding a co-founder, find someone who's not who's opposite you. I would say कि जो चीजें आप में नहीं है वो आपके co-founder में होनी चाहिए, so that अगर आप कहीं डगमगाए तो वो आपको संभाल लेगा. That is how you find. Look around. Speak with your family, friends. I mean, if someone can refer you, or maybe go out on LinkedIn, post there that you're looking for a co-founder. That is how you'll end up finding a co-founder. Anmol is asking difference between startup and validation. Okay. Validation. Okay. Startup is this one. I know the answer, but this is somehow I'm not able to put the right words into it. I would say कि startup कोई इसमें difference नहीं है. आप जिस आइडिया को वैलिडेट करते हो, जो मैंने भी आपको पूरी प्रेजेंटेशन में बताया कि जिस आइडिया को आप वैलिडेट करते हो और आगे लॉन्च करते हो, दैट बिकम्स योर स्टार्टअप. Okay, the next question is Devanshu. How one can get feedback from target audience if someone has a physical product which needs physical touch and feel? So for this, you will have to actually, Devanshu, go out in the market. आप जिसका जो प्रोडक्ट है, let's say अगर आप किसी कोई प्रोडक्ट है तो आप किसी शॉप पे, जैसे let's say you can go out in the mall or put up a kiosk for a day and ask people for their feedback. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि malls में जाते हैं, वहाँ पर अपना kiosk लगाते थे. Right now, obviously, that is not feasible. So, but yes, I mean, you'll have to actually take your product in the market, approach the right people, get them to test the product. अपने सामने ही test कराओ, and then you can get it back. So this is how you can get your product tested. Rahul, how to handle failure in starting? Okay, Rahul, it is not only about startups. In anything that you do, you will come face to face with the failure. So उस time you need to, the only thing that you can do is that I would say, learn from your failures. Do not repeat them again. सीखो अपने failure से, so that आप उनको आगे नहीं करोगे, और उसको it's a part and parcel of life. चाहे आप startup करो ना करो, anything, anywhere that you go, you will have to encounter failure, because without failure, you will not be able to achieve success. So it's one of the most vital component कि जो आपको अगर successful बनना है तो आपको failure झेलना ही झेलना पड़ेगा. Okay. How to start startup? Nilesh is asking. Okay. Nilesh, again, I would say कि look around you. आप ये देखो कि आपके आसपास लोगों का क्या pain point है, is so that you can understand कि आपको उससे एक idea मिलेगा, so how can you solve that problem. So this is how you'll have to look around yourself, do some market research,
So that is how you'll able to get a startup idea. Can we start startup while working 9 to 5? Is it safe? Okay. Abhishek, I would say आप एक बार में दो नाव पे तो सवार नहीं हो सकते. Either you can do your startup or you can do your 9 to 5 job. Because according to me, आप जो भी काम करो one at a time, that is most important, so that आप आगे successful हो उस चीज में. अगर आप एक साथ दो नाव में चलोगे तो नाव तो डूबेगी ना. So we do not want that to happen. So what I would suggest is stick to one thing. Either you do a job or you do a startup. Okay, Sanjay's question is, ma'am, can two people start startup together? Yes, absolutely, Sanjay. Two people can start a startup together. Startup with prediction like in share market. May it work? Dinesh, what I would say, why not? If you know, agar you can come up with something unique, you can, I think maybe you can come up with a startup in a share market as well. How to start HR consulting with your job? Okay. Mahi, what HR consulting? Okay. Mahi, in this case, what I would suggest is कि if you really want to do an HR consulting, then obviously, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि आप एक साथ दो नाव में नहीं सवार हो सकते. So either you have to do one thing. या तो आप जॉब करोगे या आप कंसल्टिंग करोगे, because दोनों ही चीजों में आपका 100% डेडिकेशन देना बहुत जरूरी होता है. So without doing that, आप जब तक deviated रहोगे, आपके अपने ऑफिस के टाइमलाइंस होंगे, आपको अपनी कंसल्टिंग को भी अलग अलग लोगों पे पहुंचाना होगा. You have to approach the right people. So दोनों ही चीजों में you'll be lost somewhere. So I would not recommend, you know, doing two things at once. Okay. Lakshay is asking how we can get feedback if our product don't have a physical presence. So there are various online forums, Lakshay, that you can approach and आप उससे अपना feedback ले सकते हो. You can actually create a बहुत simple चीज होगी, I would say Google form maybe, that will help you to create a feedback for your from the respective clients that you want to target. How can we, okay, Nirvika is asking, how can we get funds for startup? So Nirvika, there are a lot of government policies, you know, there are angel investors, there are funding that happen. So there are a lot of channels that through which you can get funds for your startup. But if you, अगर आप अभी बिल्कुल scratch से start कर रहे हो, तो जो funding का first rule होता है, जब हमें funds इकट्ठे करने होते हैं, that's called bootstrapping. Bootstrapping is अपने ही funds को utilize करना है, जो आपकी बचत है, आप उसी को utilize करते हो अपने startup में. So that's the first step, and then later comes the angel network, or you know, you're approaching government schemes, etc. तो वो सारी चीजें होती हैं. मनीष, मैम मैंने फूड से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया है, वो घर से है. ओके, सो मनीष, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली आर यू, आप क्या पूछना चाह रहे हो. मीनवाइल आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो रोशन, आपका ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्ट्रकिंग आइडिया फॉर एन स्टार्टअप. So जो आपको मैंने भी ये पूरी पीपीटी बताई, this is what the next step is, idea validation. आपको validation करनी पड़ेगी आपकी आइडिया की, whether it will work or not. आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन में बताया है, ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे. This is the next step. Sony, what is process a startup and how can we do it? Okay, Sony, the first thing that you need to have is an idea, which I said earlier also, कि आज एक startup को आगे launch करने के लिए basically the basic thing that you need to have is idea, and then you do is idea validation, and then the steps forward. Okay, Nidhi is asking, ma'am, is food industry have good future in the market? Absolutely, food industry is, I think, is one of the growing segment. A lot of people are coming up in this segment, so absolutely, it's one of the very good industry to work in.
Okay. Ashu is saying, what are the best ways to analyze market research while searching for an idea? So market research, Ashu, is again a very vague topic, बहुत एक अलग बड़ा सा topic है. So for this, what we can do is, please get in touch with your respective center head. हमने एक last week session भी किया था, जो कि स्मृति मैम ने लिया था. So we can share the PPT with you, and you can have a look through it. Okay. Okay, so Manish is saying, ma'am, I want to start consultancy service regarding investment in capital market. Okay. So Manish, you'll have to again clarify on this part, what exactly is that you want to understand? Okay, how Sandeep is saying, how profitable is dairy farming? I think dairy farming का सबसे बड़ा example I would say is so it's a good profitable segment. Country Milk, Country Delight is what is one of the examples. IIT के students ने start किया था, and it is one of the most successful startups that we have today in the dairy farming part. So I think yes, you can do it as well. Devanshu, when is the best time to reach you? Okay, Devanshu, you can reach out to me anytime that you want. How can we start startup in digital marketing? Okay, and is the future of handmade crafts? Muskan is asking. Okay, so handmade craft again is coming up. बहुत एक sustainable चीज है जिसकी आज की डेट में बहुत requirement है. So I think yes, it has. I will not say कि बहुत ज़्यादा मतलब as compared to tech apps से related या tech startup से related बहुत उतना ज़्यादा it cannot be, but yes, it has some potential to it. Okay, Rosh. No, ma'am, I want to know about process like paper verification or more or registration. I think you can catch. पवन, ओके, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में. पवन, आपको क्या एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में पूछना है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. Meanwhile, Shruti ma'am, if anybody would like to unmute themselves, can raise their hands, or any other questions. So Abhishek, your hand is raised. I'll just unmute you. Sure. I've asked to unmute him. So Abhishek, you'll have to unmute yourself and you can ask your question. अभिषेक, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. हाँ जी, प्लीज पूछ लीजिए. अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट चैनल से पूछ लेती हूँ. I think meanwhile Pavan also wants to ask a question, Shruti ma'am. Yeah, sure. I'll just. Pavan, please mute yourself. हाँ, you're unmuted. Hello, good evening, ma'am. Good evening, Pavan. मैम, मेरे माइंड में एक आइडिया था, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जैसा कि हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल में अपने में, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, अमेज़न है, राइट. ये सभी एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ही हैं, क्योंकि इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है. जैसे जोमेटो है, स्विगी है, तो ये इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में सक्सेसफुल चल रहे हैं. राइट. तो इसी टाइप से मैं कुछ सोच रहा था. अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई आइडिया नहीं है मैम, एक्चुअल में उसी बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था. सो पवन, व्हाट आई वुड से कि जैसे आपने कहा कि जोमेटो, स्विगी, अमेज़न है, ये इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है. फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज कि आप इनके बारे में पढ़ो.
अंडरस्टैंड दैट यू नो आप जो कह रहे हो ना ट्रांसपोर्ट उनका प्रोडक्ट है, नहीं, दैट्स रॉन्ग. इनका प्रोडक्ट is something else which I want you to study. इन तीनों के बारे में पढ़ो, see how they work, what is their product, and probably that will help you understand कि आप what अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में ही जाना चाहते हो तो what kind of idea that you can come up with. जी जी, ओके, थैंक यू. Welcome. Shruti ma'am, Mahi also has a question, if you can unmute her. Yeah, done. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Mahi. मैम मेरा पॉइंट ये था कि जैसे अगर हम एचआर कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है और हम सेम लाइन में ही जॉब करें, लाइक हमने एमबीए भी एचआर और प्लस मार्केटिंग से करी, देन हम Right. वर्क भी सेम लाइन में कर रहे हैं, देन उसके बाद अगर हम साइड टू साइड ये चीज स्टार्टअप ऐसे मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब एक सेफ साइड भी रहे जॉब की, और अगर हमारा बिजनेस सेटअप हो जाता है भी प्रॉपर तो देन हम कंटिन्यू करें, तो क्या वो ऐसे कर सकते हैं हम? देखो माही, आपको किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, सब चीजें ठीक है, बट आपको उसको टाइम भी देना पड़ेगा. यू नीड टू हैव टीम ऑल्सो. आपके पास पैसे भी होने चाहिए सो दैट यू कैन पे योर टीम एज वेल, राइट. आपको बहुत से लोगों को अप्रोच भी करना पड़ेगा, विच इज वाई आई सेड कि अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आपके पास ऑलरेडी अपनी टाइमलाइंस होंगी जो कि आपको ऑफिस में भी जस्टिफाई करनी पड़ेंगी, राइट. एंड लाइकवाइज इन योर स्टार्टअप एज वेल, कि आपको अगर अपना एक एचआर कंसल्टेंसी करनी है तो ऑब्वियसली उसको बढ़ाना चाहोगे, राइट. यू विल हैव टू साइन अप विद कंपनीज, यू विल हैव टू अप्रोच द कैंडिडेट्स, यू विल हैव टू, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड. सो इफ या तो आप ये चीज कर सकते हो कि पहले फोकस ऑन योर जॉब साइड बाय साइड, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ प्लान फॉर योरसेल्फ, कि आप अपना ये देख लो कि आपको कैसे आगे लिस्टिंग करनी है, अपने फंड्स कैसे क्रिएट करोगे, आप अपनी टीम कैसे हायर करोगे, वो सारी चीजें कर लो. वंस यू हैव एवरीथिंग एल्स इन प्लेस, देन आई वुड से प्रॉब्ली दैट यू कैन switch back to your HR consultancy firm. I hope that answers your questions, Mahi. Okay, so we have a question from Navya in chat box. How we can start a startup in handicraft products? नव्या, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में ही काम करते हैं. सो आई वुड से कि अप्रोच योर रिस्पेक्टिव सेंटर हेड एंड डिस्कस योर आइडिया विद देम, एंड देन दे विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट वेज. Smriti ma'am, can you please unmute Devanshu and then Nilesh Rawat? They both have a question. Sure, ma'am. Devanshu, please unmute yourself. Yes, am I audible? Yes, Devanshu, you're audible. Good evening, everyone. Good evening. मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट रेडी है, बट जैसे आपने बताया कि फीडबैक लेने के लिए हमें कियोस्क या कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा, तो मेरा टारगेट ऑडियंस है वर्क फ्रॉम होम जो एम्प्लॉइज है. ओके, सो अगर मेरे को उनका फीडबैक चाहिए तो इस पेंडेमिक के टाइम पे मैं क्या उसके बजाय दूसरे ऑप्शंस क्या है मेरे पास कि मैं प्रोडक्ट का फीडबैक लूं, क्योंकि उस प्रोडक्ट के लिए टच एंड फील जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस होनी. Okay, so what I can suggest is that Devanshu, you can create a online feedback form. आप अपने product को थोड़ा try and explaining your product कि this is how the product will work. उसमें क्या pain points आप खत्म कर सकते हो user के. So and then give them a option whether they would want to use ऐसा कोई product or not, so that will give you a brief idea कि whether your product will work in the market or not. Obviously they'll miss that physical touch part, but at least अगर आप अपने आइडिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पॉइंटर्स में अपने अगर यूज टारगेट ऑडियंस को शेयर करो, so you'll able to have a brief idea. Because quality of the product you can just not. वो मैं आपकी बात समझ गई, but again keeping the current situation in mind, there are few challenges कि आप नहीं कर सकते. So for now you can I think start with this, and then once the situation is in your favor, आप इसको मार्केट में भी ले जाके टेस्ट करवा सकते हो. Thank you. Welcome.
Himanshu, I'm going to unmute him now. Himanshu, please unmute yourself. Okay. Smriti ma'am, Nilesh is also there. Anmol has a question. Yes. Okay, sorry. I'm saying Nilesh is also has raised his hand, and Anmol also wants Yes. they want to unmute themselves. Anmol, please unmute yourself. मैम मुझे मैम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछना था कि हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में ना जी अनमोल डिजिटल मार्केटिंग अगेन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सो उसमें एग्जैक्टली व्हाट आप क्या करना चाहते हो मतलब बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग तो आज की डेट में ऑलमोस्ट लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट तो आप ऐसा क्या यूनिक है उसमें डिजिटल मार्केटिंग में लाना चाहते हैं क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो सो दैट यू कैन एक्चुअली डू अ स्टार्टअप कि हम न्यू असेट्स वगैरह क्रिएशन या न्यू सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएशन करना सो अगेन आई थिंक अनमोल अभी आप उस चीज पे क्लियर नहीं हो ठीक है व्हाट आई वुड रेकमेंड इज थोड़ा स्टडी अबाउट इट कि आप एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे इसको यूनिक बना सकते हो या व्हाट आर द यूनिक पॉइंट्स या जो अभी एग्जिस्टिंग कुछ अगर पेन पॉइंट्स हैं कस्टमर्स के डिजिटल मार्केटिंग में आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो सो आई थिंक दैट विल गिव यू देन अ ब्रीफ आइडिया ऑफ कैसे आप इसको आगे ले जा सकते हो हम वो तो किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी तो होती है ना मार्केटिंग में हाँ जी हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें डिजिटल की हमारा प्रोडक्ट की सेल ज्यादा से ज्यादा हो राइट अनमोल यस मैम हाँ जी मैं ये कह रहा कि हम डिजिटल मार्केटिंग में तो यही है ना कि हम अपनी सेल्स को डिजिटली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हाँ जी वो आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की सेल करना नहीं होता बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें अनमोल सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा स्टडी मोर अबाउट इट ओके Okay, so next we have a question from Roshan. मैम कोई आइडिया आने के बाद वैलिडेशन के बाद हमें कोई फॉर्म भरना होगा या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह ओके सो रोशन आपका जब आइडिया वैलिडेशन हो जाता है अगर इफ यू आर अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप देन आपका प्रोटोटाइप होना बहुत जरूरी है उस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग के बाद देन आप रजिस्ट्रेशंस वगैरह फॉलो करते हो so these are so ये again service में भी you need to have everything in place कि आप service अगर कर रहे हो तो how you're going to take it forward registrations obviously आपको करनी पड़ेंगी so that आप अपना patent ले सको अपनी company register करवा सको अपना product register करवा सको market में Smriti ma'am could you please unmute Nilesh please Sure, ma'am. I'm just. हेलो yes Nilesh मैम मेरे क्वेश्चन ये था जैसे आजकल मतलब जो ये वाइन शॉप्स और बीयर शॉप्स होती हैं अगर हम इसका बिजनेस करना चाहें तो इसके लिए कहते हैं कि मतलब अप्रोच इज नेसेसरी approach in what sense Nilesh मतलब कि मैम जैसे पॉलिटिक्स से अप्रोच मतलब पुलिस वालों से मतलब वो होनी चाहिए आपकी मतलब जान पहचान होनी चाहिए एरिया में ओके तो आप इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या आप इसको एज अ मतलब मैं एज अ बिजनेसमैन जैसे मैं मान लो मतलब वैसे स्कूल मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे शाम को जैसे स्कूल से फ्री हो जाते हैं 1-2 घंटे के बाद तो रात मतलब फ्री होने के बाद 2-3 घंटे के लिए जैसे स्टार्ट करना चाहें तो नीलेश आप मुझे सबसे पहली चीज बताओ वाई वाइन शॉप कोई और कुछ क्यों नहीं मैम इसलिए क्योंकि मैम उसमें लोगों को आजकल जो मतलब क्या है मोस्टली आप भी ये देखो उसमें भी जैसे पार्टीज होती है ऑलमोस्ट हमारी मैरिज पार्टी होती है इट इज नेसेसरी पर्पस
तो नीलेश, आपको नहीं लगता कि उसमें अगर लेट्स से ड्रिंक्स अगर जरूरी है तो फूड भी उतना ही जरूरी है? हाँ मैम, वो बात सही है आपकी, बात सही है। मतलब मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि अगर शायद अगर मैं करना चाहूँ तो देखो इट नीलेश, इज। वो तो आपकी मर्जी है कि आप किसी कोई भी तरीके का बिजनेस करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो मैम ये पूछा था, जो ये बोलते हैं कि इस मतलब कि अप्रोच होनी चाहिए तभी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं अप्रोच कर सकते। ऑब्वियसली इट्स आप कुछ ऐसी चीज करना चाह रहे हो जिसके लिए आपको लीगल लाइसेंसेस वगैरह सब चीजों की जरूरत होती है। मैम मैं तो जैसे मान लो हम अगर लाइसेंस ले मतलब कोर्ट से, मतलब मैं लाइसेंस अप्रूव करवा लूँ तो कोई ऐसा तो नहीं होता जैसे कि पुलिस वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे किसी को भी? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए नीलेश, अनटिल अनलेस आप कुछ इलीगल एक्टिविटी ना करो तो। नहीं मैम, लीगली मैम, लाइसेंस लाइसेंस हाँ जी, सो मतलब इफ मैं यू हैव लाइसेंस। एवरीथिंग लीगली इन प्लेस, आपके सारे पेपर वर्क डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इज इन प्लेस, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। हाँ तो मैम मैं पूछा था कि इट इज राइट और रॉन्ग। व्हाट इज क्वेश्चन राइट और मेरा ये रॉन्ग? कि मतलब कि बिजनेस करना मैं, गलत है? हाँ हाँ या हाँ, मतलब ये पूछा जा रहा था मैं। नीलेश देखो, ये आपकी चॉइस है, इसमें आई वुड नॉट वांट टू कमेंट हियर कि ये गलत होगा या सही होगा, बट आई वुड से कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्टीज होती हैं तो ड्रिंक्स की जरूरत होती है, तो व्हाट आई वुड से कि उतनी ही जरूरत बाकी चीजों की भी होती है, नहीं नहीं खाने मैम, की मतलब जरूरत मेरा होती है। हाँ मतलब है मेरा ही नहीं है उनके साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब और ऑल टाइम मैं ड्रिंक ही क्या, मतलब मैं उसके साथ कुछ वैसे फूड आइटम्स मतलब जो है मतलब हमारे होते हैं वो भी मतलब मैं सर्व करूंगा। ऐसा नहीं मतलब कि मैं खाली ड्रिंक का कह रहा हूँ आपसे। मतलब हाँ मेरा जी, मतलब ये मतलब मेरा मतलब ये है कि हम हम मिले हर चीज वैल्यू हो, तो मैं मतलब ये करना चाहता हूँ कि स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मतलब उसके लिए भी पूछा था कि मैं ऐसा नहीं है मतलब मैं ड्रिंक का ही करूँ, मतलब कि मैं उसके साथ थोड़ा सा, क्योंकि ड्रिंक एक्चुअली आज इन डिमांड है। मेरा कहने का मतलब कि डिमांड में है तो जल्दी मतलब जो है बिजनेस ग्रो हो सकता है विद इन राइट। तो ईयर्स। निलेश, अगर आपको कोई भी बिजनेस आप करना चाहो, पहली चीज तो अगेन जैसे अभी somebody has written in, आप चैट देखोगे तो अंकित ने भी लिखा है कि लाइसेंस, उसका एक लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो सी, अगर आपके पास वो फंड्स हैं, इट इज नॉट अबाउट वाइन शॉप और एनीथिंग, बट यू नीड, अगर आपके पास वो फंड्स हैं, आप वो फिजिबिलिटी है, आपके पास रिसोर्सेज है बिजनेस करने के लिए, तो आप श्योरली कर सकते हो। ओके मैम। ओके, सो एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? And there's a question here, how to find your target audience. I believe you've already addressed that. Yes. Then there is another question, is it necessary to share ideas? Absolutely, I think love that ideas अगर share नहीं करोगे, obviously sharing आप किससे, मतलब let's say if you are approaching us, अगर आप हमसे, हम हमारे किसी incubation center से अगर अपनी शुरुआत करना चाहते हो, तो obviously आपको अपने ideas share करने पड़ेंगे हमारे साथ, but obviously not with your competitor or anything. Okay, and Abhishek is asking, ma'am, can you tell about Chayos? Okay. What would you want to know about Chayos, Abhishek? Okay, so what I would say is, Abhishek, Chayos again has India में बहुत सारे जितनी भी जनता है, majority of them are, कहते हैं ना, चाय lovers. हम सबको चाय चाहिए होती है, चाहे हम ऑफिस जा रहे हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो. So this is how I think they saw an opportunity, and again an IIT backed startup. So they have a variety of chai. हम उनके पास वो flavors हैं जो हम normally घर में कभी try नहीं करें. One example is हरी मिर्ची वाली chai, and personally they are my favorite ones. So yes, that's how they've started, and they're growing very well. They are consistent with their quality. They have the right dedication, everything in product, everything in place. So yes, that is how they're going. They're doing pretty well. Okay.
Nishant, ma'am, I got an idea from around nearby me. Okay. So Nishant, if you want to discuss that, you can discuss that here. Otherwise, आप अपने respective center head से या हम में से किसी से भी ये चीज discuss कर सकते हैं. What is your idea? And then we'll advise you further. Krishna, what if explain a startup idea to someone to include them in, and he starts it before us? Is that possible and legal? Krishan, I think इसके लिए अगर आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और आपका आइडिया ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मार्केट में, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट हाँ, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है एंड यू आर जस्ट डिस्कसिंग और बाकी आपके अपने किसी से डिस्कस किया, उसने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो इट इज लीगल, इट कैन बी डन. अगर आपके पास कोई चीज है ही नहीं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सो देन आई थिंक इट्स योर लॉस एंड हिज गेन. सो इसीलिए अपना startup idea, I think what I would suggest is that since you are all connected with us, you can share with your respective center heads as well. Raveen, we are not having a center address, and from which age people can enter there? Okay, so Raveen, we do not have any age limit until, so you just need to be a student of any of the colleges that you are associated with. And then you can come and discuss your idea. Yes, Krishan, paperwork is also very important. Yes, that's there. Roshan, we'll have this sessions. अभी हम 2 हफ्ते regularly 3 बजे होगी ये क्लासेस अलग अलग टॉपिक्स पे. सो कल का सेशन विल बी डन बाय स्मृति मैम, व्हिच विल बी ऑन गोल सेटिंग. Nishant, okay ma'am, can we do a job and a startup when startup category is different from the job? Obviously, Nishant, आप कर सकते हो when your startup category is different. Will passed out student get assistance? Yes, Devanshu. हमारे so this is to clarify to all the students that हमारे जितने हम जिस colleges में हमारे incubation centers हैं और जितने भी colleges हमारे listed हैं, the alumni students, the existing students and the future students are liable to they will be getting assistance from the incubation center. Okay, Divya Deshmukh, can we raise funding only with good idea, which is perfect? Okay, yes, obviously, Divya, funding you can always raise with a good idea, because जो भी आपके idea में invest करेगा, the investor also sees a potential. अंकित, चंडीगढ़ में incubation center नहीं है, but पंचकुला के college में है. You can get in touch with Tanushri ma'am from there. So if anybody else has any questions, can you suggest some ideas for someone? Okay, Raveen, there are a lot of startup ideas, and it is upon you. आपको ये देखना पड़ेगा that what interests you. कि आपका किसमें इंटरेस्ट है या आप जिसके लिए देखना चाहते हो उसका किसमें इंटरेस्ट है, then accordingly you can research in the same domain. Smriti ma'am, can you please unmute Ravi? Yeah. Ravi, yes. हेलो मैम, गुड इवनिंग. Good evening, Ravi. मैम, मुझे पूछना था कि मान लो किसी के पास आइडिया है तो उसे कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि आपसे हेल्प मांग सके या फिर आगे बढ़ सके आपकी मदद से, आपकी रवि, आपके पास आइडिया है अभी सिर्फ? यस. ओके, सो रवि, आप द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि आपके पास अगर कोई भी आइडिया है, आप अपने जाके रिस्पेक्टिव सेंटर हेड से बात करें, आप उनको अपना आइडिया पूरा समझाएं, एंड देन दे विल गाइड यू फर्दर. हम आपसे सिर्फ इनिशियली हम यही कहते हैं कि आप अपना एक आइडिया लेके आओ, डिस्कस दैट विद अस, एंड देन वी विल गाइड यू फर्दर कि उसमें आगे स्टेप्स आपको क्या करने हैं.
ठीक है मैम। मैं एक्चुअली मैं एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स ले रहा था, मुझे लगा कि मुझे पहले अपने आइडिया को प्रूव करना पड़ेगा, फिर मुझे बिजनेस मॉडल। रवि, आई एम सॉरी बट आपकी ना आवाज कट रही है। मुझे लगा कि अब आ रही मैम? हाँ जी। आ रही है मैम। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का फिर मैं कोर्स ले लिया ऑनलाइन ना। ओके। मुझे लगा कि मुझे पहले बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे इंक्यूबेशन हेल्प मांग सकता हूँ। तो पहले ओके। मुझे आइडिया डिस्कस करना पड़ेगा, फिर आप मुझे हेल्प दोगे Okay. रिगार्डिंग मेरा आइडिया। नहीं, एटलीस्ट आप what I मतलब this is how we all work, that student who comes up with an idea, हम एक बार उनसे डिस्कस जरूर करते हैं कि what is the idea and then we guide them further कि आप क्या उसमें कर सकते हो, आप मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हो, मे बी कुछ चेंजेस दैट we can suggest you, so you don't need to enroll for an entrepreneurship course. ठीक है मैम, ठीक है, मैं फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, Sure, thank you. Okay, Okay, Shruti thank ma'am, I you. think we are good to Yes. go here. Thank you very much, ma'am. I would just add to Ravi that Ravi, आप entrepreneurship course में जो भी सीखोगे ना, आप आके हमारे सेंटर में वो जो भी हमारे कैंप्स लगते हैं वो सब कुछ उसमें सीख सकते हो. So I would really recommend that do not enroll for any course. You're more than welcome to visit the center. आजकल बंद है तो आप कॉल करिए. ये जो 2 week long program हो रहा है इसमें you will learn a lot. So and thank you to Shilpa ma'am. Thank you to all the participants for making it very engaging. अगर आपके कोई questions रह गए हैं तो आप अपने सेंटर हेड्स को रीच आउट कर सकते हैं या शिल्पा मैम को रीच आउट कर सकते हैं. मैंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स चैट बॉक्स में डाले हैं. रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया. हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में आपको सोशल मीडिया से पता चलता रहेगा. थैंक यू रवि. एंड ऑल्सो टुमारो सेशन विल बी ऑन गोल सेटिंग. सो आप लोग अराउंड 2:50 पे ज्वाइन कर लीजिएगा. हम लोग गोल सेटिंग पे विल डिस्कस द डिफरेंट वर्जन्स एंड हाउ टू सेट गोल्स एंड व्हाट आर स्मार्ट गोल्स. So we're going to discuss that. Thank you, everyone. Thank you, Shilpa ma'am. Thank you, everyone.